السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ میں ہوں ذل ہما اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم میں استعفوں کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں، تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ حکومت کی پریشانی سب کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کامیابی سے جاری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت ختم کرنا پڑے گی۔ جاتی امراء میں مریم نواز سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا عمران خان پہلے دھمکیاں دے رہے تھے، اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں مودی حکومت مخالف تحریک کے اگلے پلان پر بات ہوئی، استعفے آ گئے۔ وفاقی وزراء رابطے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی حکومت سے بات کرنے کا پی ایم سے این آر او مانگ رہی ہے۔ سلیکٹڈ راستے سے اب ہٹ جائیں، ہماری تحریک پر خون خرابہ نہیں چاہتے۔ دیکھو، میرا یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنٹینر دوں گا، تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں سڑک پہ کنٹینر لگاؤں گا اور ان کا راستہ روکوں گا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف سے اس کا مقابلہ ہے یا پی ڈی ایم سے اس کا مقابلہ ہے، ہمیں تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر کرسیاں اور ٹینٹ سروسز والوں سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر جہاں پر میں نے کل ریلی کے دوران کھانا کھایا تھا اس بٹ کڑاہی جو ہے اس کے اونر سے ان کا مقابلہ ہے۔ مجھے تو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی۔ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف مریم نواز کہتی ہیں کہ 13 جلسے کا نہیں فیصلے کا روز ہے، فیصلہ اپنے حق کے حصول یا پھر فیصلہ کرنے کا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مہنگائی کے اس چینی چوری کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ٹی ایم کے جلسوں میں حکومتی جبر کو شکست دے کر شرکت کی وہ بے مثال ہے۔ جس مقام پہ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قرارداد پاکستان منظور کی، وہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 13 دسمبر صرف ایک جلسے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتے کا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مہنگائی کے عذاب کے خلاف، معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف، آٹا چینی چوری کے خلاف، 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، کشمیر کے سودے کے خلاف، اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، طلباء کے وظائف کی معطلی کے خلاف، آئین اور پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف، ووٹ کی چوری کے خلاف،
फैसला आपने करना है। अब तक आपने जिस तरह पीडीएम के होने वाले जलसों में हुकूमती जबर, बर्बरियत और हट धर्मी को अपने जज्बा अजीम से शिकस्त दी, वो मिसाल है। घरों से निकलिए, अपनी आवाज और भरपूर शमूलियत से इस फैसले पे मोहर सब्त कर दें और बता दें इन जाली हुक्मरानों को कि जबर की रात कट चुकी, अब इंशाअल्लाह एक आज़ाद सुबह होने को है। हमारा यही सफ़र हम सबको निजात की मंजिल तक लेके जा रहा है। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, आपसे अब 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे मुलाकात होगी। आपकी मुंतज़िर, आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ। हुकूमत ने सियासी दर्जा हरारत कम करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात समेत दीगर अमूर पर हिकमत अमली तैयार कर ली है। सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने 3 वफाकी वज़रा की अपोजिशन से राब्तों की तस्दीक कर दी। एहसन इकबाल ने वफाकी वज़रा के राब्तों की तस्दीक करते हुए कहा, 3 वज़रा ने अपोजिशन के चंद लोगों से राबिता किया है, ताहम उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमती टीम अपोजिशन को मुज़ाकरात के मेज पर लाने के लिए कोशां है ताकि कोरोना की खतरनाक सूरत हाल में जलसे न करने से मुतल्लिक अपोजिशन से बातचीत की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भी इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को अपोजिशन हलकों में अहम हैसियत हासिल है। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां कर दी गईं। शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे का कलमदान आजम सवाती को, जबकि एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल की वजारत दे दी गई। वफाकी मैदान में वज़रा की फील्ड तब्दील कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अहम तरीन वजारत दाखिला शेख रशीद के सपुर्द कर दी। एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दे दिया गया, जबकि आज़म सवाती रेलवे के वजीर होंगे। मुशीर खजाना से वफाकी वजीर बनने वाले हफीज शेख को एक बार फिर वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान से शेख रशीद ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और नई जिम्मेदारी से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत की गई। शेख रशीद ने एतमाद करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म इमरान खान से वफाकी वजीर एजाज शाह ने भी मुलाकात की। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें काबीना में होने वाली हालिया तब्दीलियों पर भी हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। मैदान में वज़रा की फील्डिंग तब्दील। वज़ीर आज़म ने अहम तरीन वजारत दाखिला शेख रशीद के सपुर्द कर दी। एजाज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को जलसे की खुली इजाजत दे दी। दो टूक पैगाम देते हुए कहा कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। मुखालिफिन शौक से जलसे करें, इस्लामाबाद भी आए, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इक्तदार के भूखे लोग इतवार बाजार लगाने जा रहे हैं। पीडीएम वाले कहते हैं कि हम इमरान खान से बात नहीं कर सकते, वो बताएं कि फिर किससे बात करनी है। मुझे कोई टास्क नहीं मिला, अपनी जिम्मेदारियों का पता है। हमने भी यहाँ 126 दिन पड़ाव किया था, कोई नतीजा नहीं निकला। और जो महीने आप इंतखाब कर रहे हैं वो सन्नाटे की सर्दी है। अपने बच्चों और अपनी औलाद को बचाने के लिए आपने दुनिया की शहरियतें ली हैं। अपना बच्चा रोए तो आपका कलेजा फटता है, गरीब के बच्चे को दर्द हो, वायरस हो तो आपका सर दर्द होता है। इस मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुल्क में जो कोशिश की जा रही है ये नाकाम होगी। मैं बतौर वजीर दाखिला सारी इस्लामी कुव्वतों को कहना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज़ हूं। जितने दीनी मदरसे हैं वो इस्लाम के मीनार हैं, और जो मनशियात फरोश हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, जो इस मुल्क में बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो इस मुल्क को अंदर से, इस मुल्क के सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान की अजीम फ़ौज वहाँ इस जोश और जज्बे से बैठी हुई हैं। इस मुल्क को अंदर से ख़तरा है। इस मुल्क में फौरन इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इस मुल्क को अंदर से इंतशार फैलाया जाए।
और जो लोग अंदर से इंतशार फैलाना चाहते हैं इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। मैं सारी कौम को ये कहना चाहता हूँ, एक सच्चाई की सियासत उसको नाकाम बनाने के लिए, जिसमें रुकावटें डालने के लिए ये कहते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती, तो फिर मुझे आप बताएं आप किससे बात करना चाहते हैं? आप बताएं तो सही। अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो दिल की अंदर की बात बाहर लाएं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं, ये अपने केसेस का निजात चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 14, 15, 16 आप देखेंगे कि इमरान खान इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए खुशखबरी है, हुकूमत के लिए बेहतरी है और इनके लिए नाकाम। तो दूसरी जानिब शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं जिससे रेलवे नहीं चली उसको वजारत दाखिला दे दी गई, जिससे वजारत दाखिला नहीं चली उसे नारकोटिक्स का वजारत बना दिया गया। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि पीडीएम का लाहौर जलसा जरूर होगा, सैकड़ों मुकदमात दर्ज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुल्क आपकी नालायकी और करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है अपने काम में, अब वजीर को इधर करें किसी को उधर करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये तो इस काबीना का खासा है कि हर वजीर अपने काम के अलावा हर काम जानता है और उसी पर बात करता है। आज तक कोई वजीर ये नहीं बता सका कि मैंने अपने महकमे में पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए क्या काम किया। बाकी नुकसान तो एक जगह छोड़ दें, सिर्फ एक बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए उसको आप प्रमोट करते हैं, तो जिसे रेलवे नहीं चली उसको वो दे दिया, वजारत दाखिला दे दी, जिसे वजारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया, और जो बच्चा सारे इम्तिहानों में फेल था उसको रेलवे दे दी। ये रिकॉर्ड की बात है, जो बच्चा हर जगह फेल हुआ अदालत ने उसको निकाला, आपने उसको वजारत रेल दे दी है। और वजीर खजाना उन्हीं को बना दिया जिन्होंने 2 साल में हमारी मईशत को तबाह कर चुके हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कुछ रहम फरमाएं। लाहौर में रैली निकालने पर मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मजीद 4 पर्चे कट गए। इश्तियाल अंगेज तकारीर, साउंड सिस्टम एक्ट, रोड ब्लॉक और एसओपीज की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल हैं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मरियम नवाज ने जिस होटल में खाना खाया इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरियम नवाज की रैली के खिलाफ ग्वाल मंडी पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज किए। नामजद अफराद में फैसल चौधरी, अरशद, आमिर खान और इरफान भट्ट शामिल हैं। एफआईआर में 100 से जायद नामालूम लीगी कारकुनान को भी नामजद किया गया है। थाना लोहारी गेट पुलिस ने भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक और इश्तियाल अंगेजी तकारीर की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा में साउंड सिस्टम फराहम करने वाले अब्दुल रहमान, लीगी रहनुमा कामरान, काशिफ गुज्जर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद जावेद को नामजद किया गया। मरियम नवाज की रैली के खिलाफ थाना मजंग पुलिस भी हरकत में आई और लीगी रहनुमा समेत 200 से जायद कारकुनान के खिलाफ पर्चा काट दिया। इशरा में भी मरियम नवाज की रैली का इस्तकबाल लीगी कारकुनों ने महंगा पड़ गया। इस्तकबालिया कैंप में मौजूद लीगी रहनुमा तौसीफ शाह के 3 भांजों हमजा साजिद, काशिफ साजिद और सैयद आफाक साजिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे। जलसे की इजाजत देना मुमकिन नहीं, अवाम खुद को कोरोना से बचाने के लिए इज्तिमात में ना जाएं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि सियासी लोग हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। वजीर आला मुलाकात करने वाले लीगी एमपीएस के तादाद का सवाल गोल कर गए। मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात। सर सुना को सियासी लोग हैं, सियासी बातें तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात। सर सुना को सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात। सर सुना को सियासी लोग हैं, सियासी बातें तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात। वज़रा ने पीडीएम की एहतजाजी सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मुल्क के खिलाफ एक साजिश करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए।
اس وقت مذاکرات کا ماحول بنانا ضروری ہے. حکومت اور اپوزیشن کے لیے محترم شخصیات کو آگے آنا چاہیے. ایسی شخصیات مذاکرات کا ماحول بہتر کرنے میں کردار ادا کریں. موجودہ صورتحال میں تلخیاں کم کریں. یہ ملک کے لیے ضروری ہے. شہباز گل کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ مجرم کے کہنے پر استعفے اسپیکر کی بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرنا جعلی استعفوں کی دلیل ہے. عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بجائے استعفے اسپیکر کو دیں. پی ڈی ایم کے سٹیج پر اکٹھے یہ کرپشن زدہ چہرے پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں عوام وزارتوں کی نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. وزیر اعظم کنٹینر فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اب سیاسی مخالفین کے کھانوں پر مقدمات بن رہے ہیں. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ جلسوں پر پابندی جمہوریت میں نہیں مارشل لا کے دور میں ہوتی ہے. حکومت سنجیدہ رویہ اپنائے اور عوامی مسائل کے حل پر توجہ دے. آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا پر یقین رکھتی ہے. کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی. لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا، جبکہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی. اموات کی تعداد 8653 ہو گئی. مزید 3047 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,32,327 ہو گئی. صحت یاب 44,582 مریض ہو چکے. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 50 مریضوں کا انتقال ہو گیا. خیبر پختونخوا میں 1450، آزاد کشمیر میں 186 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 3047 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. خیبر پختونخوا میں 51,172، گلگت بلتستان میں 4,770، آزاد کشمیر میں 7,578 مریض ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,92,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 7,09,00,000 ہو گئی. 4,93,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 3 لاکھ، برازیل میں 1,80,000، میکسیکو میں 1,12,326، فرانس میں 57,000، افغانستان میں 1,820 اور سعودی عرب میں 6,012 اموات ہو چکی ہیں. ایک طرف تو کورونا کی دوسری لہر نے حکومت سمیت سب کے اوزان خطا کر رکھے ہیں، تو دوسری جانب صادق آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بینڈ باجا بجا دیا گیا. باراتیوں کو کھانا کھلایا گیا، وہ بھی کورونا وارڈ میں. باراتیوں نے خوب ہلا گلا کیا. ہسپتال میں شامیانے لگائے گئے. مریض بینڈ باجوں کی آواز سے تڑپ اٹھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو کورونا کی دوسری لہر نے حکومت سمیت سب کے اوزان خطا کر رکھے ہیں، تو دوسری جانب صادق آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بینڈ باجا بجا دیا گیا ہے اور باراتیوں کو کھانا کھلایا گیا، وہ بھی کورونا وارڈ میں. باراتیوں نے خوب ہلا گلا کیا. اسپتال میں شامیانے لگائے گئے، جبکہ مریض بینڈ باجوں کی آواز سے تڑپ اٹھے. آپ کو بتائیں کہ مریض بینڈ باجوں کی آواز سے تڑپ اٹھے ہیں اور اسپتال میں شامیانے بھی لگائے گئے. آپ کو بتاتے چلے کہ تحصیل صادق آباد ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بینڈ باجے بجا دیے گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتائیں کہ صادق آباد کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سجی شادی کی تقریب کا احوال جانتے ہیں دھنی بخش مہر سے. دھنی بخش مہر، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی شکریہ. تحصیل ہسپتال صادق آباد میں شادیان باجوٹے ہسپتال ملازم کی بیٹی کی بارات کی ڈھول دھماکے کے ساتھ ہسپتال میں انٹری کی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ باراتیوں نے دلہے پر پیسے بھی لٹائے، جبکہ مہمانوں کی توازن کے لیے کورونا وارڈ والی بلڈنگ کو شادی ہال میں تبدیل کر دیا گیا اور کورونا وارڈ والی بلڈنگ میں مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. شادی کے شامیانے بھی ہسپتال کے مین گراؤنڈ میں نصب کیے گئے ہیں، جبکہ ہسپتال میں ڈھول اور بارات کے شور سے مریض پریشانی میں مبتلا ہو گئے. شادی میں کورونا ایسوپیز کا خیال بھی نہیں رکھا گیا اور سینٹری ورکرز کو کھانا کے تقسیم پر لگا دیا گیا. دوسری جانب تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ایم ایس لیاقت چوہان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کورونا کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے، بلڈنگ خالی تھی تو شادی کی تقریب میری اجازت سے ہوئی ہے. جی بہت شکریہ دھنی بخش مہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
उम्र 14 साल और कद 3 फुट, मगर काम बड़े बड़े। आशिकाना मिजाज भी नहीं, फिर भी शेरो शायरी पर इंग्लिश में किताब लिख डाली। सूफियाना ज़हन के मालिक नूरुद्दीन, जिनका कहना है कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल ज़हीन बच्चों को आगे लाएं ताकि वो पाकिस्तान का रोशन कर सके पाकिस्तान का नाम। कहते हैं ना, कल के खुदा से मोहब्बत करो तो सब कुछ मिल जाता है। फैमिली में सबसे लविंग कौन है? सभी लविंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लैपटॉप ने लड़की के साथ इश्क करवा दिया, देखे नहीं वो शायर क्या जिसे मोहब्बत ना हो। अदाकारा महविशियात आपको शादी की ऑफर करे, अगर वो ऐसा करें तो मैं सोचूं। मैं आपदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान, आतिफ असलम के जो सॉन्ग होते हैं उन्हें सुनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शजरुद्दीन और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़हीन बच्चे के साथ करा रहा हूँ जिसकी उम्र 14 साल और कद जो है वो 3 फुट है। इस ज़हीन बच्चे ने अदबी हलकों में उस वक्त तहका मचा दिया जब इसने छोटी सी उम्र में शेर व शायरी की किताब इंग्लिश में लिख डाली और दुनिया के नामवर शायर इसे दाद दिए बगैर ना रह सके। वन एंड ओनली नूरुद्दीन। जी नूरुद्दीन, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आशिकाना ज़हन भी नहीं और फिर भी आपने शेर व शायरी की किताब इंग्लिश में लिख डाली, इसके पीछे क्या राज है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकाना ज़हन मेरा था, लेकिन मौसमों से, जानवरों से, अल्लाह ताला की मखलूक से, कहते हैं ना, कल के खुदा से मोहब्बत करो तो सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए मैं तमाम जो होते हैं लोग, उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। यही कहता हूँ कि अगर हम अपने इकबाल को, फराज को, फैज़ को, सबको गालिब को पढ़े तो हमारी यूथ कुछ कर सकती है। हमें इन चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए और इन्हें तालीम में हासिल करना चाहिए। अच्छा नूर, ये बताएं कि आपकी फैमिली में सबसे लविंग कौन है? फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर? और ये भी बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 बहन भाई हैं। मैं एक हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी बहन है। तो ऐसे सभी लविंग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे ज़्यादा डैड से मेरी मोहब्बत है, मॉम से है। तो वालिदैन का एहतराम और अदब हमारी कौम पे बाहक है, तो इसीलिए हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो है आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आप भी 24 घंटे लैपटॉप पे जो है वो स्टडी करते रहते हैं, और अगर लैपटॉप ने आपको किसी लड़की के साथ इश्क करवा दिया तो फिर आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखे नहीं वो शायरी क्या जिसे मोहब्बत ना हो, जो कि शायरी के एटमॉस्फेयर से कुछ ना सीखे। तो इसीलिए मैंने अपने आप को शायर नहीं कहा कभी। मैं हमेशा स्टोरीज लिखता रहता हूँ, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो इंस्पायर हों, ऐसे काम करें जो कि करने चाहिए। तो इसके बाद आपको सवाल की रही तो बात जवाब ये है कि मैं सोशल मीडिया पर भी लोगों की बात सुनता रहता हूँ, जवाब आते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रपोज करे। अगर वो कर भी दे तो मैं उससे बात को टाल देता हूँ कि मैं इल्मी तौर पे लोगों को इंस्पायर करा। और लैपटॉप पर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो आपने कहा, वो बात ये है कि मैं एक्चुअली जब वक्त मिलता है, कहीं मसरूफ़ ना हूँ तो करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने मोबाइल पर ही ज़्यादातर काम करता हूँ। अच्छा नूर, ये बताएं कि अगर अदाकारा महविशियात आपको शादी की ऑफ़र करे तो फिर आपका क्या इरादा है? आप बात अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फेमस जो है फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड, उनकी फेमस एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फिल्म और ड्रामे मैंने देखे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। अगर वो ऐसा करें तो मैं सोचूंगा। एक अच्छा शायर हो और उसे म्यूज़िक पसंद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नूर ये बताएं कि आप किस किस सिंगर को सुनते हैं? आपने सही कहा, मैं आपदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान और आतिफ असलम और कोक स्टूडियो के जो सॉन्ग्स होते हैं उन्हें सुनता हूँ। वाकई कोई ऐसा शायर नहीं है मुझे अभी तक नज़र आया जो कि म्यूज़िक को ना सुने, चाहे वो सूफीज़्म में हो, चाहे वो कोई रीम हो, चाहे वो कुछ हो, है तो म्यूज़िक ही। तो मैं सूफीज़्म के लिहाज से सुनता हूँ और मैं सूफीज़्म को भी पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं सुनता रहता हूँ। मुझे उससे काफ़ी इल्म हासिल हुआ है, साथ साथ मतलब सारा कुछ आता रहता है।
मैं यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोक स्टूडियो सुने, कोई और सुने, क्योंकि आपदा परवीन की आवाज़ वाकई सूफीज़म है, उसमें कुछ चीज़ नज़र आती है, जो बाबुल्ले शाह का कलाम या गुलाम फरीद का, मियाँ मोहम्मद बख्श का कोई शेर, तो ऐसे जब वो उसे पढ़ती हैं तो लगता है वाकई कुछ उसमें नज़र आ रहा है, कुछ की मतलब है उसमें, तो हमें ऐसी चीज़ सुनते रहना चाहिए। अच्छा नूर, ये बताएं कि आपको कौन कौन से शायर पसंद है? शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, फैज़ अहमद फैज़, और आप किससे मुतासर हैं और आप किसको शौक़ से पढ़ते हैं? उर्दू शायरों में से मैं इकबाल को ज़्यादा पढ़ता हूँ। इकबाल की शायरी हमारे यूथ को हमारी चेंजेस ला सकती है। इकबाल एक वो शायर है जो कि शहीनों को लीड करता है, उसकी शायरी, उसका इवन अदब जो है वो बहुत दूर तक है। इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है जो कि मेरा फेवरेट तरीन है कि बाग में शबनम पड़ती है, बाग में शबनम पड़ती है फ़कत इसलिए पत्ता पत्ता करता है जिक्र, पत्ता 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 करता है जिक्र बावजू होकर। तो उनकी ये दो लाइनों का जो शेर है ना, ये मैं पढ़ा, मुझे बहुत बेहतर लगा और समझ आई कि वाकई इसमें उन्होंने दो लाइनों में सारा उन्होंने ये दरिया कूजे में दरिया का वर्णन करने वाली बात। अच्छा ये बताएं कि सूफीज़म में कौन से शायर आपको पसंद? मैं बाबुल्ले शाह को पढ़ता हूँ, गुलाम फरीद को पढ़ता हूँ और मियाँ मोहम्मद का एक आधा शेर पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे ही सूफीज़म को पढ़ता रहता हूँ और यही जानता हूँ कि सूफीज़म में बहुत नॉलेज है, क्योंकि जो कि बाबुल्ले शाह हैं या कोई भी शायर है, आपदा परवीन ने भी उनको गाया, तो ऐसे बाबुल्ले शाह ने कहा था एक शेर में कि बुल्ले नालो चूल्हा चंगा जिस पर ताम पकाए थे। ताम कहते हैं रोटी को, जो पंजाबी डीप है। तो ये शेर से मैंने सीखा कि उन्होंने शायरी में अपने आप को कुछ नहीं समझा, तो एक दरवेश टाइप थे शायर। तो बहुत बड़ी बात है कि सूफीज़म से मैं कुछ सीखा। अच्छा नूर, आप ये बताएं कि आप अपनी यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं टीवी टुडे के ज़रिए? मैं बहुत से कोट, बहुत सी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। इकबाल ने कहा था कि अगर नम ना हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है ताकि, तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। और एक बात और कि मैं रात को कोट पढ़ा था, किसी ने कहा हुआ है कि लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट, आप आराम करना सीख लो लेकिन क्विट करना ना सीखो। तो इसलिए हमें कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए। जो गिव अप कर देता है वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नूर का ये कहना है कि हौसले बुलंद हों तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि हम जैसे स्पेशल बच्चों को आगे लाएं ताकि हम दुनिया में अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी स्टडी के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शजरुद्दीन को। और नूरुद्दीन पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, तो दूसरी जानिब तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल अल गाजी के मरकजी किरदार एहसन आलतान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर से रिपोर्ट देखिए शजरुद्दीन की। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंजन अल्तान का कहना था कि पाकिस्तानी मद्दाहों का शुक्रगुजार हूँ। आंजन अल्तान वजीर आज़म इमरान खान की तारीफ किए बगैर न रह सके। It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. तुर्क अदाकार आंजन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदाकार ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया और पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और खानों की खूब तारीफ की। आंजन अल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तसर दौरे पर आया, वरना पाकिस्तान के तारीखी मुकामात देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। कैमरामैन एहसन रजा के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में गैर मुनज़्ज़म सियाहत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। मरी और गिलियाद के सियाहती मकामात पर नाक़िस मनसूबाबंदी से इमारतें खड़ी की गई। सियाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। मकामी लोग दरख्त बचाएंगे तो सियाहत तरक्की करेगी। नथिया गली को बचाने का सहरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाता है। को पलूटी होने देंगे
क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी सफाई होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उससे इलाके भी प्रिजर्व हो जाएंगे और फिर हम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिधर बड़ा मुश्किल है, यानी ये जितने भी आपने इलाके बताए इधर बड़ा मुश्किल है, लोग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नौजवानों के लिए उन इलाकों में अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो ये टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इनको सस्टेन करेगी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इको टूरिज़म एक साइंस बन चुकी है और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। कीनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज़म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज़म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान की टूरिज़म है वो आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये ऊंचे जो इलाके हैं गर्मी से लोगों ने बचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन किया टूरिज़म में। लोग जाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो आपको अब कोई टूरिज़म के लिए इश्तिहार नहीं देने पड़ते। मोबाइल फ़ोन ही एक की वजह से टूरिज़म के ये जो स्पॉट। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।